uh, in temple. So therefore, Prabhuji asked me to take his class. Obviously, when Prabhuji comes, the class is very insightful, and Prabhuji speaks in such detail about the Bhagavad Gita with his gems of realization. But I am very small person. I don't have so much knowledge or realization. But on his instruction to speak something for my own purification and for my attempt to glorify Krishna and as a service to all of you, I'll try to speak something. So, yeah. So before that, we'll just try to revise the last class that we had. Somebody would like to share any point? Glories of devotional service. I came to know Prabhuji had discussed from the Bhagavad Gita. So somebody would like to share something what Prabhuji had discussed. What points had been discussed? Any point you can share. So ये क्लास इंग्लिश हिंदी किस में होता है? Both language together? Combine. Yes, Prabhuji, mostly English. Okay, okay. So we will go English, Hindi, both. Yeah. We have discussed about the 7 principles of Bhakti Yoga. Ah, 7 principles of Bhakti Yoga. So can some of you tell some of the principles? What are the 7 principles? Prabhuji, the first point I think was we worship Krishna along with Radha Rani. So, Okay. Yes. Anything else? Association with devotees Association with devotees. and select one gurus. Okay. See, I was not there in the last class. आप ही को सबको पता है. So I just want to hear what Prabhuji had discussed, you know, in the last class. and we should remain faithful and loyal to Krishna even if we have adversities in our life. Yes, remain faithful, especially in adversities. Correct. If there is prosperity, it is very easy to remain faithful. कृष्ण बहुत अच्छे हैं, मेरे जीवन कितना अच्छा चलता है, कृष्ण बहुत अच्छा अच्छा चीज मेरे साथ कर रहे हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल. बट टू बी ग्रेटफुल and faithful when adversities are going on. If Krishna is doing something bad with me, means this is what I need to go closer to Krishna. So that if we can do, that is called as faithfulness. Yes. Anything else? Very nice point. See, no need to go in order. You can speak any point from any part of the lecture. Anything that you remember. All 4 principles Yes. that no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Yes. So these 4 principles are called as, somebody knows what they are called as. क्या बोला जाता है? Regulative principles. Regulative principles. But generally जब मैं भक्ति में आया था, we were told regulative principles of freedom. It's amazing, na? Regulative principles. You are given some principle to follow to regulate you, मतलब to control you. Correct? Regulation मतलब क्या? Control. How can controlling someone give him freedom? Can you give an example कि हम किसी को कंट्रोल करते हैं और एक्चुअली में हम उसको फ्रीडम दे रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट? अगर किसी को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो उसको फ्रीडम दे रहे हैं कि फ्रीडम नहीं दे रहे हैं? जनरली लोग क्या सोचते हैं? रेगुलेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया मतलब फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, फ्रीडम तो छीन ले रहे हैं. But Prabhupada tells these are regulative principles of freedom. How these are regulative principles? Or give me a real life example जहां के हम किसी को रेगुलेशन देते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, तो उसको फ्रीडम कैसे मिल जाता है? Yes, let us use your brain. Freedom from wrong thing. Freedom from doing anything wrong. Hari Bol. Everybody say Hari Bol for Ritika Mataji. Hari Bol. This is the most Hari Bol. important thing that we have to understand in spiritual life. फ्रीडम का मतलब इस दुनिया में होता है फ्रीडम फॉर.
फ्रीडम फॉर समझते हैं, मेरे को आजादी चाहिए घूमने का, मेरे को आजादी चाहिए कुछ भी बोलने का, मेरे को आजादी चाहिए कुछ भी खाने का। फ्रीडम फॉर डूइंग दिस, फ्रीडम फॉर डूइंग दिस, फ्रीडम फॉर डूइंग दिस। बट वी शुड थिंक स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अबाउट फ्रीडम फॉर, इट इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम। आपको समझ आ रहा है? लेजीनेस से मेरे को फ्रीडम चाहिए, काम वासना से मेरे को फ्रीडम चाहिए, ग्रीड से मेरे को फ्रीडम चाहिए, दूसरों के प्रति जेलेसी जो मेरे को होता है, मेरे को उससे फ्रीडम चाहिए। आई डोंट वॉन्ट फ्रीडम फॉर डूइंग समथिंग, आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम द नेगेटिविटीज दैट इज इनसाइड मी, and that is why these are called as regulative principles of freedom. Correct? So these are also called as, there are 4 pillars of dharma. धर्म की जो होता है ना, सबको पता है कि इन मनुष्य जीवन जो है वो धर्म का पालन करने के लिए बना है। कोई बता सकता है कौन सा ऐसा श्लोक है जो बताता है? महाभारत से श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक, कि मनुष्य जीवन धर्म के पालन के लिए बना है। वेरी 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 फेमस श्लोक है। कर्मण्यवाधिकार नहीं 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 नहीं, महाभारत, महाभारत। यदा यदा यदा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नहीं नहीं नहीं, ये सब भगवत गीता से है। देखिए आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है सर, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता से ही आंसर देंगे, इधर उधर का किताब से नहीं देंगे। ये सब अच्छे बच्चे हैं। बट एक वर्स आता है महाभारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आप सबको ये तो पता होगा कि मटेरियल लाइफ के 4 ही प्रिंसिपल हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। करेक्ट? सबको पता है ये? तो ये वर्स महाभारत में आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। सामान एतत् पशुभिः नराणाम। सामान पशु में और नर में, इंसान में, ये दोनों बराबर है। आदमी भी खाता है, पशु भी खाता है। आदमी प्लेट में खाता है, पशु डायरेक्ट खा लेता है, बस अंतर उतना ही है। आदमी भी सोता है, पशु भी सोता है। करेक्ट? निद्रा, हम लोग कर्लॉन मैट्रेस पे सोते हैं, और कुत्ता जो है ऐसे अपने पूंछ से, देखा है, थोड़ा साफ करके उधर ही लेट जाता है। हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कुत्ता फ्रस्ट्रेटेड है, अरे मैं काश बेड में सोता। कुत्ता बहुत खुश रहता है, रादर आदमी परेशान रहता है। देखा रात को वो स्लीपिंग पिल खा के सोता है। आजकल एक ऐसे आंख में मास्क आता है, देखा आपने, ऐसे काला मास्क लगा के सोता है, थोड़ा लाइट नहीं। कुत्ता को देखा है कभी इतना स्लीपिंग पिल खा के सोते हुए? किधर भी सो जाता है, रादर हर दिन अलग अलग बेड पे सोता है कुत्ता, देखा है आपने? कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे। तो समान है, कुत्ता भी सोता है, हम भी सोते हैं, दोनों अपने में समान है। सिमिलरली खाना पीना सोना ये सब कुछ बराबर है पशु और नर में। तो कोई बोलेगा प्रभु जी कोई अंतर है कि नहीं? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। एक ही चीज अधिक है मनुष्य जीवन में, वो क्या है? धर्मो ही तेषाम। वो धर्म का पालन कर सकता है, सही गलत में डिस्टिंक्शन कर सकता है, ये मेरे को करना है। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हमारे गौशाला में अगर आप आएंगे, ठीक है, कोई गाय है, ठीक है, आपने गाय को थोड़ा सा घास दिया, कभी देखा है गाय ने थोड़ा सा घास खा लिया और बाकी छोड़ दिया और बगल वाली गाय को बुला रही है, अरे तू भी खा ले? गाय क्या करेगी? जो मिलेगा हपेट लेगी। हाँ पेट भर गया तो अलग बात है, लेकिन खा लेगी ना। रैदर जितना हो सके खाएगी दूसरे गाय आने से पहले। बट सपोज मैं श्याम नारायण प्रभु के घर गया और मुझे भी भूख लगी, उनको भी भूख लगी, और एक ही रोटी है, तो श्याम नारायण प्रभु क्या करेंगे? अरे प्रभु जी मेरा पेट थोड़ा भरा है, चलिए आधा आधा खा लेते हैं, कि नहीं? भले ही उनको भूख लगा है लेकिन वो शेयर करेंगे। दिस कॉल्ड धर्मा। मनुष्य सोच सकता है मुझे भूख लगा है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, नहीं भले ही मुझे भूख लगा है लेकिन अतिथि का सेवा मेरे को करना है। ये सब कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली धर्म बहुत बड़ी चीज है, अलग अलग टाइप के धर्म है। अतिथि का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है, माता पिता का धर्म है, भौतिक जगत में अलग अलग धर्म है। और जो अभी आप लोग कर रहे हैं इसको परो धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परो धर्म। परो धर्म मीन्स द हाइएस्ट धर्म इज टू सर्व कृष्ण। तो आप भगवान का व्याख्या सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का धर्म है। ऐसा नहीं कि यही धर्म है, और भी सारे धर्म है, बट ये परो धर्म है।
तो धर्म बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में प्रभु जी कभी और डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या धर्म है, कैसे पालन करते हैं। बट पॉइंट है कि ये धर्म का काम जो है वो केवल, अच्छा धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। कैन somebody टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्मा? आप लोग भगवत गीता एडवांस के स्टूडेंट हैं, धर्म का मतलब क्या है? डेफिनेशन, रिलीजियन और धर्म क्या है? जिसको रिलीजन बोलते हैं, एक्चुअली वो रिलीजन नहीं है। आई एम हिंदू रिलीजन, यू आर मुस्लिम रिलीजन, वो रिलीजन नहीं है एक्चुअली, वो तो विश्वास है। समझ आ रहा है ना? धर्म क्या है? प्रभु जी, dharma is righteousness. What we should राइट, do. राइटियसनेस। हु विल टेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? प्रभु जी, तो according to scripture, मैं according to scriptures जो prescribed duties है वो करना है धर्म। प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, हरि बोल फॉर राहुल प्रभु। टू फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड लॉज ऑफ गॉड इज कॉल्ड एज धर्मा। संबड़ी में से, प्रभु जी मैं सही काम करता हूं, कल मैंने चोरी किया प्रभु जी, अपने लिए नहीं किया, मेरा बच्चा रो रहा था इसीलिए आपके घर से मैं दूध चुरा के लाया, बोतल में भर के उसको पिलाया प्रभु जी। और जो बोतल में जो दूध बच गया ना प्रभु जी, वो मैं वापस कर दिया था आपके घर में जाके, फिर से मैं भगोना में डाल दिया। मैं सही किया कि गलत किया? कौन बताएगा? मेरा बच्चा रो रहा था, मैं आपके घर में आया, आपके किचन में जाके दूध चुरा लिया, बच्चे को पिलाया, जो जितना जरूरत था उतना ही पिलाया, और जो नहीं जरूरत था वापस आके आपके भगोना में डाल दिया। मैं सही काम किया कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ कि अधार्मिक हूँ? अधार्मिक प्रभु जी। अधार्मिक। तो ये तो टेंटेटिव है ना, मैंने तो अपने बाप का धर्म निभाया, बच्चा रो रहा है मर ही जाता। सो हाँ। देर इज कंफ्यूजन व्हेन यू एंड आई डिस्कस व्हाट इज धर्मा। यस। यू में से रॉन्ग, आई में से करेक्ट, सी में से नहीं, नहीं बीच का है प्रभु जी। एंड दैट इज वाई धर्म हैज टू बी धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ओनली भगवत who has made this world, who has made us, only he can tell what is right and what is wrong. जिस तरह हमको अगर एक फ्रिज खरीदते हैं, कौन सा बटन दबाने से क्या होगा हम बता सकते हैं कि जिसने बनाया है? जो बनाया है वो बता सकता है। तो लोग क्या है, भगवान का बात पढ़ना नहीं चाहते हैं, मंदिर आना चाहते हैं, प्रोग्राम में आना चाहते हैं, ताली बजाना चाहते हैं, घंटी बजाना चाहते हैं, बट पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्लास में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में जैसे ही आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मंदिर जाके तो जो मर्जी कर सकते हैं, करेक्ट। मैंने कृष्णा के साथ सेल्फी खिंचाया, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने जाके मंदिर में घंटी, क्योंकि मंदिर में आप जो मर्जी कर सकते हैं, बट जैसे ही आप क्लास में आते हैं, जैसे ही गीता पढ़ते हैं, तो वहां पे कुछ भगवान बोल रहे हैं ये करना है, ये नहीं करना है, तो इमीडिएटली हमारे ऊपर क्या आ जाता है? रेगुलेशन। एंड जैसे ही रेगुलेशन आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं, मेरे को जो मर्जी मैं वो करूंगा। ये हो गया है भारत देश का स्थिति। तो देर इज रिलीजियन एंड देर इज फिलोसॉफी। ओके, रिलीजियन इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलोसफी। जैसे भगवान को आरती दिखाना, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजियन। बट क्यों आरती दिखाते हैं? कौन बताएगा कि आग क्यों दिखाते हैं? आरती में क्या क्या दिखाते हैं? किसको क्या पता है आरती में क्या क्या दिखाया जाता है? आरती धूप, देखिए आपने? धूप, धूप दीप, दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, फिर फूल, फूल दिखाते हैं, जल, जल दिखाते हैं, जल दिखाते हैं। तो हैंकरचीफ। एक्चुअली, हाँ, सो इन ऑर्डर वी आर ऑफरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू गॉड। कृष्णा हैज क्रिएटेड अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो हम अर्थ से, धूप से भगवान को अर्थ दिखाते हैं, फिर फायर दिखाते हैं, स्मेल भगवान ने इस दुनिया में दिया है तो भगवान को उस स्मेल को ऑफर करते हैं, फ्लावर। फिर आपने देखा पीकॉक फेदर ऐसे करते हैं, क्यों? वो हवा भगवान को ऑफर करते हैं कि भगवान आपने दिया है। हम भगवान को कितना थैंक यू बोल सकते हैं, है कि नहीं? अभी मैं 28 साल का हो गया, मेरे पापा ने मेरे को इतना बड़ा किया, इतना ख्याल रखा, इतना पढ़ाया, लाखों रुपए खर्चा किया, कहाँ कहाँ नहीं लेके गए घुमाने फिराने, सब कुछ के लिए मैं थैंक यू कभी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, उसके लिए क्या थैंक यू बोलेंगे? सो वी जस्ट ऑफर आवर हम्बल की थोड़ा सा अर्थ, वाटर, फायर, एथर, जो भगवान का ही है वही भगवान। जैसे कभी कभी देखा है, बेटा क्या है, वो मम्मी से पैसा लेके पापा के लिए गिफ्ट लेके आता है, हैप्पी फादर्स डे। अगर पापा तभी पूछ दें, बेटा पैसा तो मेरा ही है जो मम्मी से लिया है, पापा ऐसे बोलते हैं कभी? नहीं बोलते। पापा खुश होते हैं, चलो कुछ तो मेरे बारे में सोचा, वही बहुत है। तो सिमिलरली भगवान को हम क्या ही दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं।
बट फिर भी भगवान की चीज को ही भगवान को जब अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं. तो सिमिलरली दिस इज रिलीजियन. So there is religion of offering and there is philosophy behind it. क्यों किया जाता है, उसका मतलब क्या है? So philosophy is I am offering everything that God has given me as a gratitude to God. So now philosophy without religion is dry speculation. Just imagine आप लोग केवल क्लास करते रहो, क्लास क्लास क्लास, कोई कीर्तन नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई भक्त नहीं, खाली सुनते रहो. तो कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा ना, खाली पढ़ता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ. करेक्ट. सो जब तक आप उसको एक्शन में नहीं बदलेंगे, कुछ प्रैक्टिस में, तो फिलोसफी विल बिकम वेरी ड्राई, जैसे बोरिंग थ्योरी सब्जेक्ट. एंड इफ देर इज ओनली रिलीजियन, ओनली प्रैक्टिस, कुछ सुनते नहीं है प्रभु जी, पूरा मंत्रा दिखाते हैं, आरती दिखाते हैं, तो क्या होगा? सेंटिमेंटलिज्म में बदल जाएगा. देखा आपने, भारत में मोस्ट लोग क्या है? भावुक भक्त हैं. भावुक भक्त देखा है? 3 बार प्रणाम करना है. देखा आपने? कभी मंदिर के सामने जाएंगे, 3 बार प्रणाम. उनको पूछो 3 बार क्यों करना है? 4 बार में क्या भगवान गुस्सा हो जाएंगे? नहीं नहीं, दादाजी बोले हैं, जैसे 3 बार प्रणाम करना रहता है. समझ आ रहा है? देखा आपने? तो इट बिकम सेंटिमेंटलिज्म. पीपल डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग. थोड़ा आज आज मन खुश है तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कल मन खुश नहीं है, हम अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे. इस साल इंक्रीमेंट हो गया, भगवान बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, सुंदर घर में बड़ा सत्संग प्रोग्राम हुआ है. अगले साल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं भगवान? क्या फायदा भगवान का पूजा करके? क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है. उसको लगता है भगवान खाली अच्छा अच्छा सब दे देंगे मेरे को. करेक्ट. So therefore, there has to be religion, there has to be philosophy, and that is called as spirituality. There is spirit. Spirit मतलब क्यों कर रहा हूं मैं उस चीज को. और रिचुअल, रिचुअल मतलब एक्टिविटी. मैं चैंटिंग करना इज अ रिचुअल. मैं क्यों चैंटिंग कर रहा हूं, भगवान का नाम क्या है, किस तरह भगवान का नाम. व्हेन स्पिरिट मीट्स रिचुअल, इट बिकम्स स्पिरिचुअल. इफ देर इज ओनली रिचुअल, इट विल बिकम इमोशनल. जैसे देखा, कुछ दिन माला किया, आज मन नहीं कर रहा है प्रभु जी, बहुत काम था ऑफिस में, तो फेंक दिया माला. क्योंकि वो सेंटिमेंटलिज्म कर रहा हो. अरे तबीयत अच्छी लगे नहीं लगे भाई, अच्छा दिन जाए चाहे नहीं जाए, भगवान का नाम लेना है, भगवान को क्यों छोड़ें, दिन अच्छा नहीं गया तो. करेक्ट. सो देयर हैज टू बी स्पिरिट, देयर हैज टू बी रिचुअल which gets combined into spiritual. So that is why, तो धर्म के बारे में मैं बताया था. करेक्ट. तो धर्म जो है इंसान के जीवन का सबसे यूनिक सिग्निफिकेंट पार्ट है. अगर धर्म नहीं है तो लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो. अधिक जो हमारे जीवन में धर्म है, धर्मे न ही ना पशु भी समान. अगर किसी के जीवन में धर्म नहीं है तो वो पशु ही है, बस 2 टांग पे चलता है. पशु 4 टांग पे चलता है और मनुष्य 2 टांग पे चल रहा है, अगर धर्म नहीं है तो. सो ये जो धर्म की जो इमारत है, द बिल्डिंग ऑफ धर्मा स्टैंड्स ऑन 4 पिलर्स. कैन एनी हाउस स्टैंड विदाउट पिलर्स? डायरेक्ट देखा है क्या? खाली खाली सीलिंग है प्रभु जी. फिर सीलिंग है, अरे सीलिंग के पिलर रहेगा तब तो सीलिंग खड़ा रहेगा. तो जो धर्म, अच्छा कौन सा इंपॉर्टेंट है, सीलिंग इंपॉर्टेंट है कि पिलर? अरे दोनों इंपॉर्टेंट है. खाली पिलर है, ऊपर से बरसात गिरता है प्रभु जी, धूप लगता है, तो घर में रह के क्या फायदा, इससे अच्छा खुला ग्राउंड में रह लो. और केवल सीलिंग है तो क्या हाथ से ऐसे पकड़ के रखेंगे सीलिंग को पूरे दिन? तो सीलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो द धर्मा इज द सीलिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट वी नीड पिलर्स, एंड द 4 पिलर्स ऑफ धर्मा आर, कौन बताएगा व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ धर्मा? Truthfulness, यस, सत्यम जिसको बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस और सत्यम. नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस. compassion. No, not compassion exact. हाँ, compassion, दया दया दया, mercy. Okay, so mercy, दया. Next, शौचम, cleanliness, and last is तप, austerity. तो मनुष्य जीवन का जो, अगर कोई बोलता है मैं धार्मिक जीवन में बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, तो हमको पूछना चाहिए 4 चीज करते हैं क्या? क्या करते हैं? आपके जीवन में क्लेनलीनेस है, ट्रूथफुलनेस है, और क्या है? मर्सी है, दया होना चाहिए दूसरों के प्रति, सत्यता होना चाहिए जीवन में, ऑनेस्टी, एंड देन देयर इज तप और सेंस कंट्रोल,
देयर इज कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, थोड़ा तपस्या होना चाहिए। और जो चीज इसको तोड़ता है, इस पिलर को, वो चार है हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल। मीट ईटिंग, मीट ईटिंग से धर्म का कौन सा स्तंभ टूट जाता है? दया। दया। यू आर किलिंग समबडी, हाउ कैन यू बी मर्सीफुल? अरे किलिंग तो दूर का, बोलते हैं कि किसी को कटु शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि उसको खराब लगे। दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट दया। वी शुड स्पीक सॉफ्ट स्वीट वर्ड्स that people like to hear. We should speak the truth, but in a nice manner. बट दूसरे को मार रहे हैं, फिजिकल पेन दे रहे हैं, तो वो तो बहुत ही खराब है। ओके, नेक्स्ट, नो मीट ईटिंग, देन नो गैम्बलिंग। ट्रुथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, क्योंकि गैम्बलिंग करते हैं तो सच कैसे बोलेंगे? गैम्बलिंग, जुआबाजी में तो झूठ धोखाधड़ी एकदम ओपनली चलता है। नेक्स्ट क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, यस। क्लीनलीनेस। नो नो नो, इंटॉक्सिकेशन कम्स अंडर ऑस्टेरिटी, सेंस कंट्रोल। जो शराब पीता है वो कभी खुद को कंट्रोल नहीं कर, शराब तो पीते ही कंट्रोल के बाहर जाने के लिए, है कि नहीं? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल, ऐसे बचपन में मैं गाना सुनता था। तो जब तन्हाई में रहता है, परेशान रहता है, तो परेशानी भूलने के लिए, खुद पे कंट्रोल खोने के लिए आदमी शराब पीता है, नशा करता है। नशा आपको खुद के कंट्रोल से बाहर ले जाता है। सो दैट इज वाई नो इंटॉक्सिकेशन। लास्ट इज नो illicit sex. It breaks the principle of शौचम, because it is a very unclean activity. So we try to maintain cleanliness by this following this principle. तो सबको समझ आया अच्छे से? क्योंकि देखिए, अभी थोड़ा भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कुछ फॉलो करेंगे, पहला चीज लोग क्या बोलेंगे? क्या जिंदगी है, नॉनवेज नहीं खा सकता है, ये नहीं कर सकता है, उन कुछ भी तो नहीं कर सकता है। एक्चुअली एक प्रभु जी थे, वो बहुत बताए थे, क्योंकि मैं तो बंगाली हूँ। जब मैंने नॉनवेज नहीं खाता था तो सब हंसते थे मेरे पे, थोड़ा मजाक उड़ाते थे, दिक्कत है। तो फिर एक प्रभु जी थे, उनका नाम अतुल कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी एक क्लास में आए, वो ऑस्ट्रेलियन डिवोटी हैं, इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो ही केम टू गिव अस अ क्लास, एंड ही सेड दैट ही वाज अ न्यू डिवोटी, and he was following the regulative principle, chanting Hare Krishna and wearing dhoti kurta. So one day some his college friends, Royal Melbourne College in Australia, they started laughing at him. क्या है, तू सिगरेट पी सकता है? ये सिगरेट भी नहीं पी सकता है, क्या फायदा है ऐसा जिंदगी का? एंड देन ही वाज फीलिंग वेरी बैड, अरे हाँ, मतलब बोला तेरे लाइफ में तो कोई फ्रीडम ही नहीं रहा। एंड देन ही सेड ही स्टार्टेड प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा give me something to speak because I am feeling demotivated. So then Krishna inspired him. And you know what he said? He said, very nicely, he shows. He took the cigarette from his hand. He says, if I want to take this cigarette, okay, everybody listen carefully. Can I take it or not? ऐसे लगाऊंगा और पी लूंगा, उसमें क्या है? ऐसा थोड़ी है कि डिवोटी बन गया हूं तो प्रभु जी, प्रभु जी सिगरेट मुंह के पास पहुंच नहीं पा रहा है, प्रभु जी, प्रभु जी सिगरेट हाथ में, ऐसे थोड़ी है भाई। अगर कल मेरे को शराब पीना है, ऐसे गिलास में डाल के पी लूंगा ना, उसमें क्या है? तो ही सेड एनी टाइम आई वांट, आई कैन टेक दिस, पुट इट इन माय माउथ एंड स्मोक, सो आई कैन स्टार्ट टेकिंग सिगरेट एनी टाइम। ही सेड, कैन यू स्टॉप टेकिंग सिगरेट फ्रॉम टुडे? कैन यू स्टॉप फॉर 1 month, नो सिगरेट? Can you do it? I will start. I can start anytime. I can show you right now. Can you stop? And the person was speechless. So he said, who is having freedom, myself or yourself? You are thinking you can smoke, but you cannot give it up. So that is how that devotee told me. That is why Prabhupada calls it regulative principles of freedom. आप में से कितनों को पता है कि नारद मुनि पूरे दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं? पता है आपको ये? नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं। He can go to spiritual world, he can come to material world, anywhere. You know why? Because इस material laws को ऐसा बनाया गया है, जितना आप भगवान के regulations में रहते हैं, उतना आपको कंट्रोल फ्री दे दिया जाता है। द मोर यू फॉलो रेगुलेशन, मोर फ्रीडम यू गेट। जैसे घर में देखा है, कुत्ता रहता है, किसी का पालतू रहता है, पेट एनिमल, उसको बांध के रखते हैं क्या घर के अंदर? ऐसे जाता है, थोड़ा बेड पे सोता है, एसी में सोता है। आई हैव सीन सम पीपल स्लीप विद देयर डॉग ऑन द बेड, वैसे करके पूरा, मतलब ऑलमोस्ट वो बंदे के, आप समझ रहे हैं, ये करोड़पति के साथ सोता है वो।
बट गले में एक पट्टा बांधना पड़ता है उसके लिए। देखा है कि नहीं? खाना उसको मिलता है पेडिग्री, सुंदर पेडिग्री में कभी ये मिला के वो देखा है। आई हैव सीन पीपल हैव स्पेशल सोप फॉर शैम्पू ऑफ डॉग, स्पेशल कंघी, स्पेशल हेयर ड्रायर फॉर, एंड ऐसे नेल्स भी काटते हैं डॉग का, यू नो, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं? गली का कुत्ता कैसे रहता है, कभी जाके नाला से खाओ, कभी खाना ही नहीं मिला, कभी खाना खा रहा है, देखा है, दूसरा कुत्ता आ जाता है छीनने के लिए, ऐसे दिखाता है, फिर भागना पड़ता है, कभी लड़ता है, और कितना टेंशन रहता है, कभी बारिश में सोना पड़ता है। लेकिन गली का कुत्ता है, बोलता है मैं ज्यादा फ्री हूँ, कभी बारिश में सोता हूँ, कभी नाली में सोता हूँ, कभी बाई फोर्स, ही इज एंजॉइंग बाई चॉइस। आपको समझ आ रहा है? तो देखने में क्या लगता है, कौन ज्यादा फ्री है? बाहर का कुत्ता। एंजॉय कौन करता है? घर का। करेक्ट। लेकिन घर का डॉग बनने के लिए ही हैज टू एक्सेप्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशन। देखा है, एक सुंदर डॉग कॉलर रहता है, कहीं पे भी टॉयलेट नहीं कर सकता, उसको पता है कहाँ जाके करना है, कहीं पे भी कुछ भी खा सकता है क्या? अच्छा खाना खाना है, टाइम पे खाना है। करेक्ट। नाउ वी कैन चूज इफ यू वांट अ लाइफ इन जो मर्जी करेंगे, एंड देन यू आर सफरिंग ओनली एक्चुअली, और यू वांट टू फॉलो। सो जितना हम लोग भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उतना भगवान हमको मटेरियल लॉज से फ्री करते जाते हैं। जैसे एक मटेरियल लॉ क्या है, आप कहीं से कहीं भी नहीं जा सकते हैं, पैदल जाना पड़ता है। बट सम योगीज, by following the laws of God, by controlling their senses, they can even fly in air. Why Krishna has given that sanction? Because they are controlling their senses, they are not misutilizing. So more you don't misutilize Krishna's resources, he will allow you to use it. And that is why नारद मुनि हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, हमेशा उनका सेवा करते हैं। तो उनको फैसिलिटी भगवान ने कैसा दिया है, एक सेकंड में जहां जाना है जाओ, जैसे जाना है जाओ, जब जाना है जाओ, बिकॉज ही इज नॉट मिस यूटिलाइजिंग। एंड उस उल्टा आप देखिए, जो लोग ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, देखा है, टू मच दे डू सम रॉन्ग एक्टिविटीज, देन भगवान मटेरियल नेचर उतना उनको कसता जाता है, एक टाइम के बाद वो नशा के बिना रह ही नहीं सकता, मर जाएगा ऐसा लगता है। देखा आपने? सो दे आर पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, दे आर पनिश्ड बाय देयर ओन बॉडी, माइंड इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तो उनको कसते जाते हैं, जितना आप रूल्स फॉलो तोड़ेंगे, जितना आप रूल्स को फॉलो करेंगे भगवान का। इसीलिए बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। If you chant Hare Krishna, read Bhagavad Gita, if you follow the laws of God, you will be given freedom more and more. The more you think I want freedom, I will do whatever I want, उतना आपको कसते जाएंगे। इसको फिजिक्स में हम पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स समझ रहे हैं? पैराडॉक्स मतलब लगता है ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। समझ आ रहा है ना? द मोर यू वांट, ट्राई टू बी हैप्पी, you will not be happy. If you want to be happy, don't try to be happy. Do you understand everyone? खुश होने का कोशिश करेंगे, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, इसका बात नहीं सुनूंगा। किसी का बात सुन के कभी खुशी मिलता है क्या? द मोर यू ट्राई टू बी हैप्पी, यू विल नॉट बी हैप्पी। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, डोंट ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू फॉलो the injunctions of God. That will make us happy. And little bit there may be some pain or rules and regulation, but ultimately it will give us freedom, regulative principles of freedom. Does this make sense to everyone? I don't know. मैं क्लास में कुछ और ही डिस्कस करने वाला था, रिवीजन करने वाला था, बट मैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बोला, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिव प्रिंसिपल एक ऐसी चीज है दैट वी वांट टू फॉलो थ्रू आउट लाइफ, especially when we go out to meet materialistic people, and again you will be challenged by them that you, what is this is so, इतना सारा कंडीशनिंग है, क्या है इतना उठ फॉलो क्या है। तो वी शुड लाइक, वन ग्रेट सन वन सन्यासी इन इस्कॉन सेज, व्हाट इज दिस, ये जो कंठी माला है, दिस इज डॉग स्कॉलर। यू अंडरस्टैंड? डॉग स्कॉलर, वी आर डॉग ऑफ कृष्णा।
एंड एवरीबडी नहीं 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 नहीं, तुम तो पालतू कुत्ता है, घर में रहने वाले, घर में रहने वाला कुत्ता बहुत खुश रहता है। मैं देखा हूं मेरे दोस्त को, कुत्ता के पीछे भाग रहा है खाना खिलाने के लिए, और कुत्ता दूर भाग रहा है, मतलब देखा जैसे छोटा बच्चा भागता है, मम्मी पीछे पीछे भाग रही है। बाहर का कुत्ता को तो खाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। एंड वन हु एक्सेप्ट्स रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, then he is awarded by special love of Krishna, because you want to follow Krishna. Correct? Does this make sense for everyone? So कभी भी आपको कोई बोले रूल्स रेगुलेशन के बारे में जो भक्ति में हम पालन करते हैं, क्या उसको सिगरेट वाला एग्जांपल बताने का? सर मैं कभी भी पी सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ, आप बंद कर सकते हैं क्या? हाँ? आई एम मोर फ्री। ओके, सो यस, एनीबडी और एनी कोई और कुछ पॉइंट है क्या? तो इसी में ऐड करने के लिए प्रभु जी बोलते हैं टू बी कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड टू हम्म, कंट्रोल आवर माइंड, बिकॉज ऑफ हाँ, हरी बोल। मैं तो प्रभु जी दिल की करता हूं। दिल की करते हो, एक दिन करके दिखाओ जो दिल नहीं करता है करने का, तो उस दिन पता चल जाएगा। लाइक आई विल टेल यू, मैं बहुत बिंदास व्यक्ति था तब, बहुत बिंदास व्यक्ति ना, दोस्त दोस्त कैलकाटा में बड़ा हुआ हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में दोस्त थे उस तरह के ही। आई लेड अ लाइफ ऑफ लॉट ऑफ फ्रीडम, माय पेरेंट्स नेवर कंट्रोल्ड मी। द फर्स्ट टाइम वन डिवोटी टोल्ड टू मी, प्रभु, अरे प्रभु जी जो अच्छा लगता है करता हूँ बस, प्रभु जी जो मन करता है, मन का सुनते हैं प्रभु जी, मन। तो मेरे को वो बोले कि आप अगर, जैसे आपको कहीं घूमने का मन है, तो आप कुछ और भी तो मन कर सकता है ना, चलो पढ़ने का मन है, तो बोले अभी आपका घूमने का मन करता है, आप घूमने चल जाते हैं, एक दिन उसके अलग करके दिखाओ, कुछ मन कर रहा है घूमने का, पढ़ के दिखाओ। तो बोले कर लेंगे प्रभु जी, हमारी मर्जी है, मन का क्या है। एंड हालत खराब हो गया। दैट डे आई केम टू नो कि मैं और मन अलग है। ये मन जो है टोपी देके घुमा रहा है मेरे को कब से, मेरे को खींच खींच के लेके जा रहा है, जो मन करता है वो मेरे से करवाता है। मैं और मन सेम नहीं है। हमको लगता है मैं ही मन हूं, मैं मन नहीं हूं। मन कर, जैसे तो मेरा मन कर रहा है, मतलब मन को कर रहा है वो करने का, और आप मन की बात सुन रहे हैं, एक बार उससे अलग करके वो करके दिखाओ जो तुमको करना है, नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी भी आप देखिए ना, कभी मन कर सुबह उठना है, प्रभु जी ने बोला है, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। पता है, समझ में भी आया है, उसका इंपॉर्टेंस भी पता है, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? कि मन नहीं कर, दैट मीन्स आपने, आपको जो करना है और मन को जो करना है वो अलग हो गया है। एंड दैट इज वाई वी नीड रेगुलेशन। एक तरफ मन और एक तरफ गुरु। गुरु वर्ड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नहीं नहीं, गुरु वर्ड, जस्ट द वर्ड मीनिंग, मतलब वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ। गुरु का मतलब रोल या Guru means heavy, पर्पस नहीं heavy. बोलना। हेवी, आपने सुना है हिंदी में वर्ड, इंग्लिश में वर्ड है ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वा, आकर्षण, आकर्षण मतलब जो खींचता है, बल मतलब फोर्स। सो गुरु मीन्स हैवी, हैवी चीज को अपने तरफ खींचता है। तो सिमिलरली द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु इज हैवी। क्यों हैवी? समटाइम्स गुरु आर नॉट सो हैवी, कभी कभी गुरु थोड़े पतले भी होते हैं। हमारे चिंताप्रभु थोड़े से पतले हैं प्रभु जी। सम गुरुज आर हैवी ऑल्सो, वेरी गुड बिल्ट। बट हैवी का मतलब क्या? शरीर से हैवी नहीं, कैसे हैवी? गुरु को हैवी क्यों बताया जा रहा है? आप सब पढ़ाई, Instruction. हाँ हाँ, यस यस राहुल को। So Guru's instructions are not easy to understand sometimes, and sometimes they are difficult to follow. हाँ, जैसे देखा ये वर्ड बंगाल में बहुत है, हैवी क्वेश्चन पेपर एसचिलो। हैवी क्वेश्चन पेपर, हैवी मतलब भाई बहुत लोडेड था भाई, बहुत टेंशन हो गया, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। सो गुरु जो बोलते हैं वो थोड़ा लोडेड होता है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लोडेड होता है, कभी कभी हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो, बट वी नो इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो। पूरे दुनिया का बात एक तरफ और गुरु का बात एक तरफ, फिर भी गुरु का बात का वेट ज्यादा ही रहेगा।
क्योंकि दुनिया वाले जो बोल रहे हैं, कोई बोल सकता है ना प्रभु जी 400 लोग मेरे को बोलता है कि नॉनवेज नहीं खाते हो प्रोटीन कम हो जाएगा प्रभु जी। सीता है प्रभु जी बोल रहे हैं कि देखो वेज खाना चाहिए, 400 लोग तो बहुत होता है ना प्रभु जी, ये तो अकेले बोल रहे हैं। तो फिर कैसे आप बोलेंगे? क्योंकि ये सब व्यक्ति जो हैं, ये भौतिक जगत के व्यक्ति हैं, वो आपको बोल रहे हैं अपना मन का बात सुनो। और ये क्या बोल रहे हैं? ये अपने मन से भी नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान का बात बोल रहे हैं। करेक्ट। तो दैट इज वी शुड अंडरस्टैंड कि कितने लोग, पब्लिक ओपिनियन में कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपको रेगुलेटिव प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ, रियल स्टोरी। एक बार प्रभुपाद जी एक कॉलेज में गए प्रोग्राम करने, बहुत बड़ा कॉलेज था, मेरे को नाम याद नहीं एग्जैक्टली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कहीं पे, तो गए थे। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला था वहाँ हॉल में लेक्चर देने का। तो डिवोटीज ने परमिशन मिला, पूरा हॉल फुल था, बच्चे आए थे, प्रोफेसर आए थे, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत ताली बजाए प्रोजन में। एंड प्रभुपाद सेड, सो टू जॉइन आवर सोसाइटी यू नीड टू चैंट 16 राउट्स ऑफ हरे कृष्णा एंड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। एंड प्रभुपाद ने पहले रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नो गैम्बलिंग। 50% जनता उठा और चला गया हॉल से। नो इंटॉक्सिकेशन, और आधा लोग उठा चला गया। प्रभुपाद बोले नो मीट ईटिंग, 3 लोग बचा था लास्ट में। एंड प्रभुपाद लास्ट में, नो इलिसिट सेक्स। अमेरिका में टू हैव सेक्स विद एनीवन एंड एवरीवन इज वेरी कॉमन, एंड प्रभुपाद से नो इलिट सेक्स है। ये 3 लोग प्रभुपाद जी के पास आया और बोला अगर ये प्रोटोकॉल है आपके सोसाइटी का मेंबर बनने का, स्वामी जी नो बडी विल बिकम मेंबर ऑफ योर सोसाइटी, थैंक यू वेरी मच बोल के चला गया। एंड प्रभुपाद जी भी आराम से उठे, बैग ले लिए, चलो चलते हैं, प्रोग्राम खत्म। तो वो डिसाइपल जो इतना मुश्किल से प्रभुपाद जी के लिए प्रोग्राम अरेंज किया था, वो बोलता है प्रभुपाद जी इतना मुश्किल से लोगों को लाए थे, अरे थोड़ा थोड़ा कम बोल देते उनको, मतलब नहीं बोलते रेगुलेटिव सर, बाद में बताते, देखिए बुरा मान गया सब हो जा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इधर किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, ऑलरेडी दिस चीटिंग बिजनेस इज गोइंग ऑन। प्रभुपाद बोलते हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये भी धर्म है, जो करना है कर लो, धर्म है, भगवान तुमसे बहुत खुश हैं, कुछ भी कर लो, बस थोड़ा डोनेशन दे दो। तो बस आई हैव नॉट कम टू चीट एंड आई डोंट वांट डाइल्यूशन, जिसको पालन करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, है ना, व्हाई शुड आई चीट, आई हैव नॉट कम टू मेक फॉलोअर्स। सो दिस शोज हाउ ऑथेंटिक ही वाज। देयर आर पीपल, बहुत, इसीलिए आप देखिए प्रभुपाद जी को जो ज्वाइन किए, सीरियस लोग ज्वाइन किए। डोंट थिंक कि प्रभुपाद ने जो सोसाइटी चालू किया वो सबसे बड़ा सोसाइटी था उस समय का। प्रभुपाद के उस समय 5,000 शिष्य थे 11 साल पे, उससे बहुत ज्यादा शिष्य बहुत लोगों के पास है। किधर है वो? किधर भी नहीं है, बिकॉज प्रभुपाद ने डाइल्यूशन नहीं किया। तो दिस इज अबाउट रेगुलेटिव प्रिंसिपल। तो कभी हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ तिलक लगा रहे हैं या सत्संग में जा रहे हैं। अरे लोग पार्टी में मैं तो ऐसे बोलता था, अरे भाई तुम्हारा अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमारा अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तुमको कहीं जाके बकैती करनी है, हमको भी बकैती करनी है, भक्तों के साथ करनी है कि नहीं? हमको कृष्ण के बारे में चर्चा करना है, वो हमारे कॉलेज में इसको बकैती बोलते थे, गप करना। तो बोले आपको भी गप करनी है कुछ कुछ चीजों के बारे में, सरकार के बारे में, आईपीएल के बारे में, हमको भी बात करना है कृष्ण के बारे में, क्या सेवा हुई इस बार, और कुछ सुनना है भगवान के बारे में। सेम थिंग ओनली। देन मेरे दोस्त बोलते थे हाँ हाँ सही बात है, अपना अपना चॉइस होता है एंटरटेनमेंट का। मैंने हाँ ठीक है। तो हमको थोड़ा बुद्धिमान भी होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है लोगों से, हाँ तुमको मैं मारूंगा, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, हमको समझना चाहिए ठीक है, वो भी कुछ कर रहा है, हम भी कुछ कर। जैसे मेरे को जब मेरे मम्मी पापा ने नॉन वेज ये सब के बारे में, मैं सीधी, मेरे को सीताई प्रू बोले थे, मैंने सेम चीज घर में चिपका दिया। मैं बोला खाना और कपड़ा आदमी अपने मर्जी से पहनता है और खाता है, किसी के बोलने से नहीं खाता है। मेरे को ये अच्छा लगता है तो यही खाना पड़ेगा। मैंने झगड़ा नहीं किया है कि क्यों नॉनवेज, मैं तुम्हें मार दूंगा, नॉनवेज हटाओ, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो खाएगा। तो इमीडिएटली मेरे पापा ने बोला हाँ हाँ सही बात है भाई, जिसको जो अच्छा लगता है वो खाए, खाना थोड़ी जबरदस्ती होता है। और ऐसा थोड़ी है कि हमारा लड़का बोल रहा है कि हमारे लिए दूसरे ग्रह से खाना लेके आओ। क्या है, जो चावल दाल खाता है, रोटी खाता है, वो खाएगा। कुछ उसको नहीं खाना है तो नहीं खाएगा। तो इस तरह होना चाहिए।
तो वी शुड नो, वी शुड बी स्ट्रिक्ट विद आवर सेल्फ, बट वी शुड बी लीनियंट विद अदर्स। लोगों को सही बात, सत्य बात बतानी चाहिए। जैसे मैंने घर में बताया कि आप पाप काम कर रहे हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं, बट वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनको गुमराह तो नहीं किया, गलत तो नहीं बताया कि हाँ जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो। तो इसी तरह हमको दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ट्रुथफुल रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपने साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हाँ मैं तो यही पालन करना चाहता हूँ। ओके, चलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी का कुछ प्रश्न भी है तो पूछ सकते हैं। आज का क्लास कुछ स्पेसिफिक नहीं था, ऐसे मैंने कुछ जनरल डिस्कशन किया, बहुत मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया था इसका। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न पिछले क्लास से या उसके भी पिछले क्लास से आपको कुछ याद आ रहा है? प्रभु जी ने बहुत कुछ अच्छा आप लोगों को बताया, मेरे से भी शेयर कीजिए। बहुत दिन पहले मैंने भगवत गीता एडवांस अटेंड किया था, मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा आप सबसे। ओके, तो मैं एक्चुअली टीचर हूँ, आप सबको पता है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो बिकॉज मैं टीचर हूँ, बच्चों से मिलता, दिन में 5-6 घंटे मेरे बच्चों के साथ ही जाते हैं। थोड़े बड़े बच्चे, टीनेजर बच्चे, तो छोटे बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। बड़े बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, छोटे बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है। तो मैंने चूज किया कि मैं बड़े बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, थोड़े टफ सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा लेकिन। सो इसीलिए बच्चों के साथ समय बीतता है, तो बच्चों को मैं बहुत सारे स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने चिंतापू से ही सीखा है, स्टोरी स्टोरी सुनाना बहुत जरूरी है। तो एक स्टोरी मैं सोच के आया था, अगर आप सबका परमिशन हो तो वो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अगर आपका परमिशन है तो बोलिए हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल। तो ये स्टोरी आप सबने सुना ही है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने, लेकिन स्टोरी के कुछ कंक्लूजन्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये स्टोरी पर्सनली मेरा बहुत प्रिय है। तो ये स्टोरी है जटायु की। कौन कौन जानता है जटायु कौन है? जटायु, ओके। तो जस्ट अ बैकग्राउंड, जटायु और संपाति दो भाई थे। दोनों दे आर ईगल्स, सॉरी वल्चर, गिद्ध थे। और बहुत, एक्चुअली संपाति बड़ा भाई है और जटायु छोटा भाई है। तो एक दिन वो बहुत बहुत ऊंचा उड़ सकते थे, एक्चुअली वो बहुत, संपाति के तो बहुत बड़े विंग्स थे, मतलब पर थे। तो एक दिन वो बहुत ऊंचा उड़ते उड़ते सूर्य के काफी काफी पास चल गए। तो गर्मी की वजह से इतना गर्मी हो गया, तो जटायु को बचाने के लिए संपाति ने अपने दोनों पर फैला दिए, जिसकी वजह से उनके पर जल गए, तो संपाति उड़ नहीं सकते थे। लेकिन संपाति की एक स्पेशल क्वालिटी ये थी कि दूर तक देख सकते थे, बहुत दूर तक। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था माता सीता के बारे में कि मैं देख सकता हूँ कि ना वहां पे रावण लेके गया है। एनीवेज, तो सबको पता है कैसे मारीची बोल के जो राक्षस है, उसको भेजा था रावण ने। एक्चुअली रावण ने क्या बोला मारीची को? मारीची बोला देखो, मैं एक बार पिट चुका हूं, है कि नहीं? तो ये गए थे मैंने देखा है खर और दूषण को। खर और दूषण जानते हैं? जब ये लोग गए थे, राम ने अकेले काल के रूप में इनके सामने, तो मारीची ने बोला आई हैव सीन लॉर्ड राम इन द फॉर्म ऑफ काल, डेथ के फॉर्म में। उससे पंगा मत लो, उसको परेशान मत करो, वो तुम ध्वंस हो जाओगे। तो रावण बोला जो मैं बोल रहा हूं करो, तुम उसको भगाओ, मेरे को सीता चाहिए। तो मारीची ने क्या सोचा कि देखो, अगर नहीं जाऊंगा तो कौन मार देगा? रावण मार देगा। जाऊंगा तो कौन मार देगा? राम मार देगा। तो बेटर किसके हाथ से मरना? राम। भगवान राम के हाथ से, भगवान के हाथ से मरना, है कि नहीं? मारीची ने अच्छा काम किया कि नहीं? राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा तो भगवान के हाथ से मरो। किस किस को लगता है मारीची ने अच्छा काम किया? हाथ उठाइए। हरी वो। बट अमेजिंग बात यह है कि हमारे आचार्य बोलते हैं मारीची ने गलत काम किया। मारीची अपने बारे में सोच रहा है कि मैं भगवान के हाथ से मर जाऊंगा, कितना अच्छा रहेगा, क्यों इस राक्षस के हाथ से मरूं। लेकिन मैं भगवान के हाथ से मरूंगा अगर सीता को, मतलब समझ रहे हैं ना, जो बोल रहा है कि तुम हिरण बन के जाओ, फिर वो माता सीता को कष्ट किसको होगा? माँ सीता को होगा,
राम जी को कष्ट होगा, उनको कष्ट दे देता हूं, मैं भगवान के हाथ से मर जाऊंगा, कितना अच्छा, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, मेरे को मोक्ष मिले, भगवान जाए भाड़ में, इससे अच्छा। तो अगर एक भक्त होता तो क्या सोचता, अरे भगवान की सेवा जरूरी है, ये चाहता है कि भगवान को कष्ट मिले, तुम मार दो, 100 बार तुम मार दो, शरीर का 100 टुकड़ा कर दो, फिर भी भगवान के प्रति डिससर्विस, आई विल नॉट डू डिससर्विस टू लॉर्ड, बेटर टू डाई हियर देन टू गो एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर लॉर्ड राम एंड मदर सीता। उसने क्या सोचा, मोक्ष मिल जाएगा राम के हाथ से मर के, अरे क्या फायदा ऐसा मोक्ष का, जब भगवान को ही तुम परेशानी में डाल दिया अपना मोक्ष के लिए। तो ये हमारे आचार्य बोलते हैं कि मारीची का भगवान के हाथ से मरना शुभ नहीं था, अशुभ था, क्योंकि उसने भगवान को चिंताग्रस्त कर दिया अपने मोक्ष के लिए। ओके, तो फिर मारीची गया, फिर हम सबको पता है कि कैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई और रावण जो है साधु के रूप में आया। वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल अगर कोई गलत काम करना है कलयुग में, तो क्या करते हैं राक्षस जन, साधु का रूप ले लेते हैं। यार इसीलिए लोगों का आस्था चला गया है साधुओं के ऊपर से। कभी कभी इतने गंदे काम तो नॉर्मल आदमी नहीं करता है जितने साधु लोग करते हैं। जैसे मैंने देखा है श्रीनिताई प्रभु को बोलते हुए, वेरी अमेज्ड। एक व्यक्ति बोलता है क्या है साधुओं पे भरोसा, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, कहाँ। तो प्रभु जी ने उस प्रवचन में बोला कि आपका साधुओं पर विश्वास नहीं है। जनरली व्यक्ति क्या बोलेगा, आपकी आस्था नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है। बट आई वॉज अमेज्ड, प्रभु जी ने बोला आपका साधुओं पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास, ये आपकी गलती नहीं है, ये हम साधुओं की गलती है कि हमने अपना चरित्र इस तरह नहीं दिखाया है, इस तरह एग्जाम्पल सेट नहीं किया है कि आप विश्वास कर पाए। आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्रभु जी बोलते हैं कि हम साधुओं की ये गलती है, आपकी गलती नहीं है। हमारा काम है कि हम आपके इस तरह आचरण करें कि आपको श्रद्धा आए हम पे। एंड देन ही सेड वी आर वेरी सॉरी दैट द साधुज ऑफ द सोसाइटी आर नॉट ट्रस्टवर्दी। आपको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। वी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर नॉट हैविंग फेथ ऑन गॉड। आप समझ रहे हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्रता लगती है किसी के मन में ये बोलने के लिए कि मेरी गलती है कि आपको भगवान पे श्रद्धा नहीं है। ऑब्वियसली प्रभु जी की नहीं, प्रभु जी एक प्रामाणिक साधु हैं, इज अ रियल साधु। और प्रभु जी तत्व बता रहे हैं कि साधुओं कैसा होना। तो सिमिलरली रावण भी गलत काम करने आया, साधु के भेष में आया, क्योंकि साधु पे कोई शक नहीं करता है। फिर माँ सीता को लेके गया, तो जब वो लेके जा रहा था, अब यहाँ से कथा चालू होती है कि जटायु ने देखा कि माता पुकार रही है, बचाओ बचाओ, तो तुरंत जटायु उड़ गया। जटायु बहुत वृद्ध थे, जटायु वॉज वेरी वेरी ओल्ड। सो ही वेंट एंड ही इमीडिएटली चैलेंज्ड रावण, ए तुम कहाँ लेके जाते हो मेरी माता को। तो, रावण रावण तो हंसने लगा जटायु के देख के। एक तो एक तो पक्षी, ऊपर से बूढ़ा, और मैं कौन, महाशिव, शिव जी का आशीर्वाद पाया हुआ दशानन, 10 सिर वाला रावण हूं मैं। तो वो हंसने लगा। एंड देन जटायु बोला कि माता को छोड़ दो, वरना तुम्हारा बुरा हालत कर दूंगा। एंड रावण वाज लाइक भाग यहाँ से। एंड देन जटायु स्टार्टेड फाइटिंग, and Jatayu started really fighting very, and Ravan also started fighting. And एक टाइम पे तो ऐसा हो गया कि जो जटायु का इतना आवेग आ गया कि मेरी माता को कैसे लेके जा, तो इससे जोर से पंजा मारा, बोला रावण का मुकुट गिर गया सिर से। And एक पॉइंट पे रावण भी चौंक गया कि बाप रे बाप, ये क्या फाइट कर रहा है मेरे से। मतलब रावण गॉट कंफ्यूज्ड कि मेरे में शक्ति है कि नहीं ये तो मेरे से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों है, जब एक भक्त की भगवान, दिस इज द फर्स्ट लेसन वी आर लर्निंग, व्हेन द डिजायर टू सर्व becomes more than the capacity to serve, then comes empowerment। क्या बोला मैं, जब आपका भगवान की सेवा करने की इच्छा आपकी शक्ति से ज्यादा हो जाती है, तो भगवान आपको स्पेशल शक्ति देते हैं। उन्होंने ऐसा शक्ति दिया कि रावण को, समझ रहे हैं, मुकुट गिरा दिया, क्योंकि उसकी इच्छा इतनी ज्यादा थी, मेरी माता को कैसे लेके जा सकता है वो, प्रभु श्री राम की पत्नी को कैसे लेके जा सकता है। तो देन रावण समझा अब इसको खत्म करना है। रावण तुरंत तलवार निकाला, जटायु के पास तो कोई वेपन नहीं था, उसने एक पर काट दिया। एक्चुअली जब
फिर भीषण लड़ाई होने लगी तो माता सीता बोली कि जटायु तुम हार जाओगे, ये दशानन है, ये राक्षस है, बहुत शक्तिशाली है, तुम चले जाओ। कैन यू इमेजिन, जिसकी आप सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या बोल रहा है, सेवा मत करो। तो पहला चीज क्या करना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है मैं जाता हूँ माता, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। गया नहीं, समझ आ रहा है, कैसे लेके जा सकता है मेरे सामने मेरी माता को, समझ आ रहा है। हमको तो अगर कोई बोल दे प्रभु जी झाड़ू लगा रहे हैं, सपोज मंदिर में कोई बोल दे प्रभु जी जरूरत नहीं है छोड़ दीजिए, तुरंत पटक के भाग जाए, थैंक यू प्रभु जी, जान छूटी भैया, बचे, बढ़िया हुआ, आपने ही मना कर दिया, मन में तो यही चल रहा था कब इससे जान छूटेगी। जटायु लड़ रहा है, समझ आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, उसको पता है ये राक्षस है, कभी भी मार देगा। और माता खुद बोल रही है जिसकी सेवा कर रही है कि नहीं जटायु तुम हार जाओगे, लेकिन जटायु क्या, नहीं नहीं नहीं, जटायु लड़े। तो फिर उसने ये निकाला अपना तलवार, and एक पर काट दिया, खून निकलने लगा पूरा जटायु के शरीर से। फिर भी एक पंख से वो उड़ रहे थे और ना माता को बचाने का प्रयास कर रहे थे। माता बोली चले जाओ जटायु, तुम चले जाओ, तुम वृद्ध हो, तुम खून निकल रहा है, तुम तो मर ही जाओगे। नहीं ना, होता है ना, जैसे इसको हम कभी कभी दीवानापन बोलते हैं, आपने देखा है दीवानापन, जो कुछ लड़के होते हैं ना दीवाने होते हैं, तो आग में कूद जाऊंगा, फिर होता है ना ऐसे बोलते हैं ना, तेरे लिए मैं चांद में से कूद जाऊंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसे जो कभी भगवान के प्रेम में पागल होता है वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसको समझ में भी नहीं आता मैं मरने वाला हूँ। एंड देन सिमिलरली रावण ने उसका दूसरा पंख भी काट दिया, जटायु गिर गए जमीन पे। एंड फिर रावण लेके चले गए। तो फिर जो है अ, जटायु, मैं क्या बोल रहा था, पहला लेसन ये है कि सेवा करने की इच्छा हमारी बहुत तीव्र होनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु जी मेरे कैपेसिटी नहीं है, मेरे को ये आता नहीं है, सेवा वो नहीं है, ये जरूरी नहीं है, वो सब आ जाएगा, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। तो भगवान कहते हैं कि लंगड़े को भी पर्वत पार करा सकते हैं, गूंगे से भी बुलवा सकते हैं, इच्छा तो हो। तो हमको इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की, मैं इच्छा कर सेवा, तो कृष्णा विल गिव ऑल कैपेसिटी। तो जटायु को खुद माता सीता बोल रही है कि नहीं सेवा मत करो, फिर भी छोड़ दो, तो जान चली, अरे जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन कैसे वो मेरी माता को मेरे सामने से लेके जा सकता है। जटायु को पता था वो हार जाएगा। आप में से कितनों को लगता है जटायु को पता नहीं था, मूर्ख था क्या, उसको पता है वो रावण से नहीं लड़ सकता है, फिर भी लड़ा। ओके, सो देन जटायु नीचे गिर गए। एंड क्या होता है, सांस के हिसाब से, जिस तरह हम सांस लेते हैं ना उसी तरह खून बहता है, उसी प्रेशर, इसीलिए जो लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं देखा आपने, जैसे दौड़ने के बाद, तो खून का संचार भी जल्दी होता है। तो जटायु ने क्या करने लगे, सांस को कंट्रोल करने लगे, अपनी प्राण वायु को, गिरने के बाद दोनों इधर से खून निकल रहा है, ही इज अबाउट टू डाई, बट ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज ब्रेथ। वाई, कैन समवन टेल, क्यों? कट गया ना, जमीन पे तो पड़ा हुआ है ना, मर जाओ ना। So that he can inform Lord Ram about सेवा। हाँ अभी सेवा बाकी है, अभी सेवा खत्म नहीं हुई है। हमारे सेवा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम सेवा ही भूल जाते हैं। अरे प्रभु जी परेशान हो गया, प्रभु जी सिर दर्द हो गया, प्रभु जी क्या आप सेवा दे दी, अभी पूरी सेवा बाकी है। जटायु को पता था सेवा अभी खत्म नहीं हुई है। जान, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट माई हैंड्स आर ब्लीडिंग, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट माई हैंड्स आर कट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज माई सर्विस। इस तरह का एटीट्यूड हमारा है क्या? हमारा हाथ कितने का हाथ कट जाता है सेवा करते करते, कटा है क्या प्रभु जी, एक हाथ ऐसे कट गया, फिर भी हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान उतनी परीक्षा हमारी नहीं लेंगे। बट चीज सीखने वाली चीज है कि अरे सेवा करते, कोई बोल अरे भगवान का सेवा कर रहे थे प्रभु जी हाथ कट गया, ये कोनो बात होता है? भगवान का सेवा तो शांति से होना चाहिए ना, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो हमारे से कंसेप्शन होता है कि भगवान का सेवा आनंद में होता है, प्रभु जी भगवान का सेवा शांति में होता है, शांति में कोई सेवा नहीं होता है। सेवा मतलब एंजाइटी, जैसे देखा है मम्मी बेटा के बच्चे का सेवा करती है, शांति में करती है क्या? बेटा रात को बोल के सोता है बच्चा छोटा, मम्मी 11 बजे सुसु करूंगा, पौने 11 बजे उठ जाना, अरे वो 2 बजे सुसु कर देता है, कभी भी कर देता है वो। कभी कभी देखा है डायपर पहनाने के तुरंत बाद सुसु करता है।
मम्मी बोलेगी बेटा तुमको तो पैदा किया था कि जिंदगी में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, तुम्हारे आने के बाद तो जिंदगी काला हो गया हमारा। ऐसे कभी मम्मी बोलती है? कहीं कहीं कहते हैं कि बच्चे का मूत्र तो माँ को कभी कभी गंगा जल के समान हो, देखा, कभी कभी बोलती "ई जी", मेरी मम्मी बोलती थी। मेरे को मेरा भाई बोलता है कि जब मैं पेशाब कर ए गंगा जल कर दिया, गंगा जल कर दिया, पता नहीं क्या गंगा जल। खुश हो जाते हैं बच्चे, वो शुशु कर दिया, बच्चा शुशु, खुश होती है मम्मी पापा। बाकी लोग चाहे खुश हो चाहे नहीं हो, मम्मी मम्मी जरूर खुश होती है, कह रहे कोई बात नहीं है ना, खुश होती है। बच्चे को बुखार आ जाता है, रात रात भर जगना पड़ता है। तो सेवा का मतलब एंजाइटी, सेवा का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेवा का मतलब सेवा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। मेरे जैसे बोलते हैं निस्वार्थ सेवा, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, सेवा ज्यादा जरूरी है। तो जटायु को पता था अभी सेवा खत्म नहीं हुई है, तो किसी तरह। और आप बताइए जल्दी मर जाता तो कष्ट कम होता कि इतने देर जीने के बाद मरा? जल्दी मर जाता तो कष्ट कम होता ना। भाई हाथ कट गया, मैंने कोशिश की प्रभु जी, मैंने सीता मैया को बचाने, सी ऑलरेडी जटायु हैज डन हिज 100%, यस और नो? 100 से ज्यादा किया है, कोशिश किया, कोशिश में हाथ कट गया, अब मर जाओ। और क्या कर सकते? नहीं, जटायु वांट्स टू डू 120% सर्विस, थोड़ी और सेवा करता हूं मरने से पहले। तो जटायु को ज्यादा कष्ट हो रहा था बिकॉज खून धीरे धीरे निकल रहा था। अगर वो छोड़ देता तो तुरंत खून निकल के मर जाता 2 मिनट में, लेकिन वो इंतजार किया, तड़पा, कष्ट सहा, क्योंकि सेवा अभी बाकी है। फिर राम जी पीछे से आए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, थोड़ा मन में देखिए, इस चीज को इमेजिन करना जरूरी है। आपको पता है आप रावण से नहीं लड़ सकते हैं, आप लड़ने गए, आप लड़ने जाने के बाद जिसके लिए लड़ रहे थे उसने खुद बोला बेटा सेवा मत करो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं माता ने बोला तुम क्यों जा रहे हो, छोड़ो। जटायु छोड़ के नहीं भागा, उसको खुद बोल रहे थे कि छोड़ दो मत लड़ो, फिर भी वो लड़ा, हाथ कट गए, कटने के बाद भी तड़पता रहा सेवा पूरी करने के लिए। नाउ दिस पर्सन डिजर्व सम एप्रिसिएशन, यस और नो? थैंक यू जटायु, तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जटायु डिजर्व सम एप्रिसिएशन? तो जान दे दिया, बोलते हैं तुम्हारे लिए जान दे, लिटरली जान दे दिया भगवान की सेवा के लिए। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग लॉर्ड राम कम्स एंड टेल्स, यू नो? क्योंकि वहां खून गिरा हुआ था ना, हर जगह खून कटा तो ऊपर था तो हर जगह खून गिरा था, जटायु थोड़ा दूर था। राम जी पहले क्या बोलते हैं? अरे सब जगह खून गिरा हुआ है, लगता है मेरी सीता को किसी जानवर ने मार दिया, किसी ने। एंड देन ही सीज जटायु वहां गिरा हुआ है। लॉर्ड राम से देखो, यही वो क्रूर कौन है, वल्चर है, गिद्ध है, कितनी क्रूरता से इसने मेरी पत्नी सीता को खा लिया। क्रूर कहीं का, कहाँ है मेरा बाण, कहाँ है? अब ऑलरेडी मतलब लॉर्ड हैज बिकम एंग्री कि इसने मार दिया मेरी सीता को, हर जगह खून गिरा हुआ है, इसको मैं तो छोड़ूंगा नहीं, भगवान बाण निकाल मार डालूंगा मैं इसको जान से। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जटायु विल टेल? अगर हम सब जड़े, पागल हो क्या? हैं? तुम भगवान हो, तुमको पता नहीं है? हैं? इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, फिर गाली मार रहा है, बताओ। जान दे दिया, जान दे दिया, जान भी नहीं दे रहा हूं, तड़प रहा हूं यहाँ पे, जान को रोक के रखा हूं हाथ में, और आके पहला चीज क्या मिलता है? चेस्टाइजमेंट। यू आर थर्ड क्लास रास्केल, दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज टेलिंग। एप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए, उल्टा डांट रहे हैं। या तो हम पहले ये बोले, दूसरा या फिर सेकंड लेवल का व्यक्ति क्या करेगा? क्लैरिफाई करेगा, भगवान भगवान एक मिनट एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है, आप गलत सोच रहे हैं। वी विल क्लैरिफाई, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू सी सेकंड स्टेज तो हम कर सकते हैं। मोस्टली लोग तो फर्स्ट स्टेज ही करेंगे कि क्या भगवान है, थर्ड क्लास भगवान है बेटा, इसके लिए हमने जान दिया। उसके ऊपर का स्टेज क्या? क्लैरिफाई, नहीं भगवान आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैंने नहीं मारा है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जटायु डिड? रावण सीता मां को उस डायरेक्शन में लेके गया है, मेरी सेवा कंप्लीट, अब मार दीजिए। क्योंकि उसको क्या लगा, क्लैरिफिकेशन के चक्कर में जान चली गई तो सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन ज्यादा जरूरी नहीं है।
भगवान आप मेरे बारे में सही सही सोचिए, मैं अच्छा आदमी हूं, नहीं, मेरी सेवा ज्यादा जरूरी है। इवन इफ मैं मर जाऊं और लॉर्ड राम सोचे कि मैं विलन हूं इस मूवी का, सोचने दो, सेवा तो कंप्लीट कर ली मैंने भगवान के लिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर ऑफ जटायु? लेवल 3 इज वी विल क्रिटिसाइज लॉर्ड ओनली दैट, अरे क्या आप आदमी है, आप मेरे इतना सेवा किया गलत। लेवल 2 इज वी विल क्लैरिफाई, आप गलत सोच रहे हैं। लेवल 1 इज सेवा सर्वोपरि, द टॉप मोस्ट इज सर्विस। एंड अमेजिंगली कोई बोलेगा जटायु ने अभी बता दिया इंफॉर्मेशन कि उस तरफ गई है, मेरी सेवा हो गई, मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया माँ सीता के बारे में, अब तो क्लैरिफाई करे। जटायु क्लैरिफाई नहीं किया, फिर भी क्या जरूरत है? भगवान भगवान है, मेरे बारे में कुछ सोचने दो ना। उसने क्लैरिफाई नहीं किया, नहीं नहीं भगवान, मैं अपने बारे में अच्छा अच्छा बताता हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया भैया, डायरी पेन निकालिए भगवान, लिखिए मेरे बारे में जो जो मैं बता रहा हूँ, मैंने कितना सारा सेवा किया आपके लिए। वो गिनवा नहीं रहा है भगवान को अपनी सेवा, सेवा कर दिया, सेवा करने के बाद सेवा भूल गया कि मैंने सेवा की थी। कॉपी में लिखवाना नहीं है भगवान को इतनी सेवा किया, अगर भगवान को नहीं पता मैंने सेवा की है तो रिटर्न, क्योंकि जटायु को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। क्लैरिफिकेशन कौन देता है, अपनी बढ़ाई कौन करता है? जिसको रिटर्न में कुछ, जटायु को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना रिटर्न में, मेरे को बस सेवा करना है भगवान का, खत्म। एंड भगवान तो भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो भगवान ने तुरंत भगवान ने धनुष बाण छोड़ दिया जटायु ने, and भगवान ने खुद बोला तुमने मेरी सीता को बचाने का, जटायु ने बोला नहीं, फिर भी समझ गए। एंड लॉर्ड राम वाज क्राइंग। इट इज सेड सीता माँ के लिए इतना नहीं रो रहे थे जितना जटायु के लिए रो रहे थे। टू द एक्सटेंट लॉर्ड राम परफॉर्म द फाइनल राइट्स, अंतिम संस्कार भगवान ने खुद अपने हाथों से, जटायु 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 को प्यास लगी थी बहुत, बिकॉज इतनी देर से पड़ा था, तो भगवान ने एक तीर मारा और वहां से एक पानी का फुहारा निकला, एंड जटायु ने वो पानी पिया। एंड उसके बाद भगवान ने खुद अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। वो जगह अभी भी है नासिक के पास, उसका नाम ताकेत है। मैं वो जगह गया हूँ, अभी एक कुंड है वहां पे जहाँ पे राम जी ने पानी पिलाया था जटायु को अपने हाथ से। अपने खुद के पिता दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार भगवान ने नहीं किया था, लेकिन जटायु का अंतिम, कैन यू इमेजिन? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा आपका दास संस्कार कर रहे हैं आपका बेटा बन के, क्योंकि जटायु का तो कोई बेटा नहीं था। बट वाई कृष्णा डज सो मच? अल्टीमेट टेस्ट कृष्णा टुक। जटायु का फाइनल एग्जाम कब हुआ? सब कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भगवान ने चेस्टाइज किया कि तुम थर्ड क्लास है, तुम ही ने मारा है। जटायु लॉस्ट द बैटल विद रावणा, बट जटायु वॉन द वॉर ऑफ लाइफ। बैटल तो हार गया, लेकिन वॉर जीत गया जिंदगी का। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए पर्सन हु इज द अल्टीमेट फेलियर and has become the ultimate winner? We should give example of जटायु। क्या सेवा किया? अगर आप एक मटेरियल सेंस में देखें, पक्षी था, रावण तो इतना महान था। सी देखिए, जैसे मैं अगर पूछूं, जैसे शिवम प्रभु हैं या राहुल प्रभु हैं, प्रभु जी आपको एक क्रिकेट मैच खेलना है या हॉकी मैच खेलना है, लेट अस से, अभी राइट नाउ आप लोग सब 11 लोग को मैं एक टीम में डालता हूं, ऑस्ट्रेलिया का हॉकी टीम के साथ मैच खेलना है प्रभु जी, हॉकी मैच। आप सब भगवत गीता एडवांस वालों को मैं एक टीम में डाल दूं, ऑस्ट्रेलिया का हॉकी, एक तो बोलेंगे प्रभु जी हॉकी मैच, वो भी वर्ल्ड टॉप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी हम। हाउ मेनी ऑफ यू आर गारंटीड कि आप हार जाएंगे? हार जाएंगे कि नहीं? कितने लोग मन से खेलेंगे कि प्रभु जी हम जीतने का कोशिश करेंगे? अरे पहले से पता है प्रभु जी हारे हुए हैं। हॉकी स्टिक भी कभी हाथ में नहीं पकड़ी है कि नहीं, है ना? ऊपर से लास्ट में मैं शिवम प्रभु को बोल दूं, शिवम प्रभु कैप्टन है टीम के, शिवम प्रभु को बोलूं प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया के साथ हॉकी मैच है, बस हॉकी स्टिक नहीं रहेगा आप लोग के पास, बिना हॉकी स्टिक के हॉकी मैच है प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए ऑलरेडी राहुल प्रभु हंस रहे हैं, शिवम प्रभु सब हंस रहे हैं, प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हम सब हंस रहे हैं, बट जटायु का यही स्थिति था। एक पक्षी है और दशानन के साथ लड़ने जाएगा। दशानन
10 सिर वाला रावण। आपको क्या लगता है जटायु को पता नहीं था कौन है रावण? पहली बार मिला था क्या उससे? जैसे कोई छोटा बच्चा को बोल दें कि सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट मैच खेलो तो खेल भी लेगा, जानता नहीं, जो जानता है वो कभी नहीं खेलेगा। रावण 10 जटायु को पता था रावण कौन है। जटायु न्यू ही विल बी गेट डिफीटेड एंड ही विल बी किल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्ले विद ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम विद द एंथुजियाज्म कि हाँ जीतूंगा? अरे पता है हारूंगा, हॉकी स्टिक है नहीं हाथ में, जटायु के हाथ में ना कोई तलवार था ना कुछ था, फिर भी किस एंथुजियाज्म से लड़ा। पता है हारूंगा तो भी किस एंथुजियाज्म से एंड हार गया अमेजिंगली। जैसे जब मैं स्टोरी बोल रहा था तो बच्चों को लगा था जटायु लास्ट में जीत जाएगा, क्यों? क्योंकि जटायु नहीं एंथुजियाज्म से जीता नहीं, हार ही गया लास्ट में। सो ही लॉस्ट द बैटल बट ही वॉन द वॉर ऑफ लाइफ बिकॉज ही प्लीज्ड लॉर्ड राम विद हिज डिवोशन। भगवान उसके सक्सेस से खुश नहीं हुए क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। Jatayu was not a success, he was a failure. He couldn't save Mother Sita. But still Lord Ram was more pleased. Why? Because was devotion. इसको बोलते हैं भक्ति। मैं अपना अथक प्रयास करूंगा, जो भी भगवान ने मेरे को दिया है, जो मेरी सेवा है उसको अच्छे से करूंगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, हुआ कोई बात नहीं, करूंगा 100%। क्योंकि मैं सोच रहा था एक्चुअली क्लास में आने से पहले, कैसे कोई व्यक्ति पता है हारूंगा। जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, श्याम नारायण प्रभु, प्रभु जी कल आपका इंटरव्यू है एक कंपनी में, आपको निकाल दिया जाएगा, जाइए जाके इंटरव्यू दीजिए। उनको पता है कि उनको निकाल देगा इंटरव्यू से, कौन देगा इंटरव्यू? पहले जाके इंटरव्यू चुप से बैठ, जो पूछना है पूछो भैया, हम तो आंसर ही नहीं देंगे, एनीवे निकालने वाले हो तो काहे आंसर दें। जैसे शिवम प्रू हॉकी खेलने जाएंगे तो खड़े ही रहेंगे ग्राउंड में, क्यों खेले भाई जब हारने वाले हैं तो। जटायु ऐसा नहीं था, जब हारने ही वाला हूं, मैं तो शक्ति ही नहीं है, रावण तो इतना, मैं क्यों लड़ू, नहीं, ऐसा लड़ा। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज to do a service which you know you are going to be failed at that time, and that devotion Lord Ram awarded कि अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। तो अगर हमको जिंदगी के जंग में हार भी गए, अलग अलग ऑफिस में, इधर में, घर में, लोगों के साथ, लेकिन अगर जीवन का विश्व युद्ध जीतना है दैट इज पॉसिबल जस्ट बाय डिवोशन। जटायु मेरे को बहुत प्रेरणा देते हैं। क्यों प्रेरणा देते हैं? कि हारा हुए व्यक्ति से भगवान कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने ट्राई किया। जीतने वाले से तो बहुत लोग खुश होते हैं, जैसे हनुमान जी से भगवान खुश होते हैं, हनुमान जी गए, अपनी सेवा किए, माता सीता के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए। बट जटायु से भगवान कितना, बट एक्चुअली जटायु ने सेवा की थी। क्या सेवा की थी जटायु ने? कौन बता सकता है? जटायु वॉज अ फेलियर एक्सटर्नली बट एक्चुअली ही डिड अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। एक तो इंफॉर्मेशन दिया माँ सीता के बारे में, वो तो ऐसे भी दे देता ना बिना लड़े, रावण उस तरफ लेके गया है। जटायु फाइट क्यों किया फिर? कोई बता सकता है? देख लेता ना उस तरफ जा रहा है रावण, और इन्फॉर्म एनीवे रावण उसी तरफ गया फाइनली, तो मर के इंफॉर्मेशन देने का क्या था? तो एक तो जटायु का डिवोशन था, मेरी माता को कैसे लेके जा सकता है, डिवोशन के मारे ही कुडंट सी कि मेरे माता को कैसे मेरे सामने ले आ सके। एंड सेकेंड थिंग इज, जिस मुहूर्त में रावण ने सीता माँ को उठाया था वो विजय मुहूर्त था। मुहूर्त होता है ना दिन में अलग अलग, विजय मुहूर्त मतलब उस समय जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको विजय ही मिलेगी, कोई हरा नहीं सकता है। बट जटायु ने लड़के उस मुहूर्त को डिले करा दिया, और अगला मुहूर्त जो था वो क्षय मुहूर्त था। क्षय मतलब जो भी आपको मिल रहा है उस मुहूर्त में वो आपके पास चला जाएगा, रहेगा नहीं। तो सीता उसको मिल गई, लेकिन इस मुहूर्त पे मिली कि वो उससे चली जाएगी। तो जटायु ने ये सेवा की, उसने विजय मुहूर्त को डिले करवा के रावण को वो काम विजय मुहूर्त में कंप्लीट करने नहीं दिया, जिसके वजह से उसने राम जी को बताया कि मैंने उसको डिले करवा दिया है, अब जरूर माँ सीता आपको वापस मिल जाएगी। एंड उसने इंफॉर्मेशन भी श्री राम को दिया। आप सबको स्टोरी अच्छा लगा? सॉरी थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्लास, 10-15 मिनट। किन किन को ये स्टोरी अच्छा लगा तो आप सब प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, हम सभी के लिए, अपने लिए, कि जो है जटायु महाराज की तरह एक 1 ड्रॉप ऑफ डिवोशन एंड कमिटमेंट जो जटायु महाराज का है, उस तरह का अगर हम में आ जाए
तो है ना, हमारा हाथ नहीं कटने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सेवा में हाथ पैर नहीं कटेगा, खून नहीं बहेगा। तब भी हम सेवा को अच्छे से नहीं कर पाते हैं जो बोला गया है। बट हम भगवान के आनंद के बारे में सोच के अगर कर पाए, तो शायद जटायु महाराज की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भी, है ना, आ, इस तरह का, एक्चुअली प्रभुपाद जी के जीवन में भी देख सकते हैं सो मच फेलियर्स। प्रभुपाद लीलामृत बोल के एक किताब है जिसमें शिला प्रभुपाद की जीवनी के बारे में है। उसका पहला दो किताब पढ़ के तब बोलेंगे किताब है क्या है ये, तो ये चालू किया नहीं हुआ, इधर बुक डिस्ट्रीब्यूट किया कोई ले नहीं रहा है, इधर गीता के बारे में बोलने जाते हैं कोई सुनना नहीं चाहता है। आप समझ रहे, हाफ बुक इज अबाउट फेलियर ओनली, ये फेल वो फेल वो फेल। हमको जो पता चलता है इस्कॉन में आके इस्कॉन बना दिया, मंदिर बना दिया, वो सब बाद में है, 1965 के बाद। बट 1965 से पहले क्या, 1933 से 1965, ईयर्स ऑफ फेलियर, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कोई प्रचार नहीं, कोई बात नहीं सुनता था उनका, फिर जाके इतना सक्सेस आया। तो पेड़ दिखाई देता है, उसका जड़ दिखाई नहीं देता है कितना बड़ा है कि नहीं? जड़ तो दिखता नहीं है, तो क्या जड़ जरूरी नहीं है? सिमिलरली हम भी को भी अगर कुछ सेटबैक आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, फेलियर, वो जरूरी नहीं है, सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए। सेवा परम सर्वोपरि, सबसे ऊपर सेवा है। सेवा होगी, भगवान खुश होंगे उससे, मेरे को खुशी मिला नहीं मिला, हम खुशी के लिए इधर पे नहीं आए हैं, भगवान की सेवा करने, एंड भगवान खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली विल ऑल्सो बी हैप्पी। ओके, आई थिंक इट इज, किसी का एक सवाल है तो ले सकते हैं, फिर क्लास को भी विराम देंगे। हिंदी तो सबको समझ आता है ना, मैंने इंग्लिश बहुत कम बोला, मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं इधर चेन्नई के पास कुंभकोणम में रहता हूँ, हिंदी बोलने का मौका नहीं मिल पाता है, सब तमिल बोलते हैं यहाँ पे, तो आप लोग के साथ हिंदी में बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।